So which is the low energy state? So it's on your RK Puri book first page. Crystalline state is a low energy state. Why? क्योंकि उसको बनाना बड़ा आसान है, एक यूनिफॉर्म पीरियोडिक पैटर्न है which is easy to make. So it is a low energy state और इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टलाइन की जो टाइप है पॉलीक्रिस्टलाइन उसको अटेन करने की ट्राई करते हैं. Number of latest points per unit cell. So here it is latest point per unit cell, not number of atoms. So simple QB के लिए 1 है, body centered QB के लिए 2 है, face centered QB के लिए 4 है. So it's A. And ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बार बार हो चुकी है, तो होपफुली ये चीज अब प्रॉब्लम नहीं करेगी आपको. Okay, the third thing, smallest volume cell is primitive cell. Okay, so we were on question 3. So primitive cell is the smallest volume unit cell, और primitive cell बनाने का जो way है that's is Wigner-Seeds method. So its answer will be both A and B. In regards to packing for efficiency, which of the following relation is true? कि किन की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है. सो वी नो कि एफसीसी और एचसीपी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है. मैथमेटिकल इमेजिनरी पॉइंट्स आर कॉल्ड बेसिस, सॉरी लेटस पॉइंट्स. बेसिस क्या होता है? जब उसके ऊपर जो एटम्स लगाए जाते हैं और लेटिस और बेसिस मिलकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं. The number of atoms in a basis are, while the number of space lattices are. So the question is simple. Basically ये PPSC 2022 में countably finite का word use हुआ. So I'm just taking here. Question ये था कि natural numbers are. So answer was countably finite. So countably finite से मुराद यही है कि उसका जैसे नेचर नंबर है 1 से लेके कुछ भी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट इनफिनाइट जब आप मेंशन कर दें कि कहाँ तक काउंट करना है. सो नंबर ऑफ एटम्स इन अ बेसिस के लेटेस्ट पॉइंट पे जो एटम्स हैं या बेसिस जिसे कहा जाता है वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 अप टू वट एवर यू लाइक. सो दे आर काउंटेबली फिनाइट. जबकि नंबर ऑफ स्पेस लेटेसिस आर फिक्स 14. So it's countable finite and it's finite. Copper has FCC structure. Ligancy basically, yeah, you can pronounce it differently as well. So it's basically about nearest neighbors. कि एक स्ट्रक्चर में nearest neighbors कितने हैं? We know कि it's simply 8. सिर्फ यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई क्योंकि ये उसके लिए एक सिनोनिम है और पेपर में आ सकती है. Which symmetry operation is only applicable in 3D inversion, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है. So it has to be none of these. बाकी ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन 2D में भी हो सकती है और 3D में भी हो सकती है, लेकिन इन्वर्जन जस्ट 3D में एप्लीकेबल है. और 2D स्केयर लेटस, आपके पास अगर एक लेटस है जो कि 2D है और वो स्केयर है तो उसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री होगी? इट्स मीन कि आप उसको 360 में रोटेट करें तो कितनी दफा आपको वो स्केयर लेटस दोबारा एज इट इज मिल जाएगी? तो वी विल गेट इट 4 टाइम. हर 90 डिग्री के एंगल पे हमें वो लेआउट मिल जाएगा. So crystal with a periodic lattice can only have axes with 1, 2, 3, 4 and not 5 but 6. This is part of your book. Okay, we cannot have 5-fold or 7-fold symmetry. We can have 1, 2, 3, 4 and then 6-fold symmetry and then onwards on. Which of the following is an example of naturally occurring primitive cell? It has to be simple cubic. बाकी naturally occurring नहीं है, they are conventional but we can make them primitive as per the requirement computationally. Number of possible Bravais lattices in 2D are 5 and in 3D are 14. So basically these are two MCQs but merge into a one. Number of atoms per lattice point in an FCC lattice are. So again the question you have to focus on the statement कि एक lattice point पे कितने atoms आ सकते हैं. तो कितने मर्जी आ सकते हैं, not fixed. So it can be anything.
It can be 2, it can be 4, it can be 8, but not always 2, always 4. So next is a question 15. So we know that we have point groups and space groups. So point groups in 3D are 32, space groups in 2D are 14, and space groups in 3D are 230. Depend upon के उनकी क्या क्या orientations possible है. An angle of 120 degree is must in which type of crystal structure? So hexagonal always have 120 degree. It's a basic property of an hexagonal crystal structure. Miller indices for a plane intercepting the axis at 3a, 3b and cr. We know कि हम क्या करते हैं, इसका reciprocal लेते हैं 1/3, 1/3, 1, and then we go for the easiest ratio. So अगर हम इनको 3 से multiply करें, so it will be 1/3. For a SCP structure, the ratio C over A is equal to 1.633 is a simple proof from your book. A plane is parallel to an axis. So उसका जो प्लेन की खसूसियत है वो इन्फिनिटी है. जब मिलर इंडेक्स लेंगे तो वो क्या 1/something, यानी 1/, नंबर होता है. सो 1/infinity विल बी 0. सो मिलर इंडेक्स इज 0, लेकिन प्लेन की जो है खसूसियत एक्सिस के साथ, दैट इज इनफिनाइट. So this is the formula to calculate the effective number of latest point for a crystal structure. So कॉर्नर पे हमें पता है कि 8 होने चाहिए. 8 की शेयरिंग होती है, so it has to be C/8. फेस सेंटर्ड के लिए 2 की शेयरिंग की डिवीजन हमारे पास होती है, so it has to be F/2. एंड देन जो सेंटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इनसाइड अ सेल L. सो ये जो है आपके एक ही होगा, यानी ये बॉडी सेंटर्ड, इट्स फेस सेंटर्ड एंड इट्स सिंपल क्यूबिक वाली चीज. लेकिन ये तमाम स्ट्रक्चर के लिए हम बना सकते हैं. देयर 14 वेरियस लेटेसिस एंड नॉट ओनली 3. सो ये फॉर्मूला है जो कि आर के पूरी की बुक में मेंशन है. सो इट कैन हेल्प टू फाइंड द इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स इन एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इन मिलर इंडिसेस क्यूब एजिस कौन से हैं? देखिए, क्यूब एजिस से मुराद है कि सिर्फ एक पॉइंट मेंशन हो एक्सिस का ना, एक्स वाई या जी. सो वो अगर देखें तो सिर्फ यहाँ पे है. फिर अगर हम बात करें फेस डायगोनल्स की और बॉडी डायगोनल्स की, सो दिस इज अ फैमिली ऑफ डायगोनल्स. तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट आर फैमिली ऑफ डायगोनल्स, और दीज टू विल बी द आंसर. लेकिन यहाँ पे अब देखें तो फेस डायगोनल से मुराद बेसिकली वो डायगोनल्स हैं जो कि फेस पे और बॉडी जो कि उसके इंटरनली हैं. तो फेस डायगोनल में हम प्लेन मिलेगा, सो इट हैज टू बी एक्स वाई और मे बी वाई जी और मे बी एक्स सी. And then the body diagonal will be from inside the crystal, so it has to be all the three. So the direction, this direction, plane direction and the axis direction is always perpendicular, or one can say the orthogonal. अगर आप ये plane बनाए और ये axis देखें तो axis और plane आपस में हमेशा perpendicular होंगे. It's a line from C equator कि XYZ axis and XYZ direction are perpendicular to each other. So उसमें कोई भी same component लाके वो आपको यहाँ से फाइंड सॉर्ट आउट करवाया जा सकता है. फैमिली हैज हाउ मेनी प्लेन्स? इस क्वेश्चन नंबर 23. तो ये वैसे अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास बॉडी डायगोनल की एग्जांपल है 1 1 1, जिसमें हम तीनों चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, और बॉडी डायगोनल 1 1 के लिए 8 हो सकते हैं in 8 different directions, so it has to be 8. Which of the following is example of loose pack structure? So BCCs, HCP and FCC are close pack structures. For FCC, determine the diameter for whom A is equal to 1 or 2 meter. So ये हमें बुक में फॉर्मूला मिलता है इसका, FCC के लिए, BCC के लिए, सिंपल QB के लिए. So this is the one of the formula for FCC. और यहाँ पे देखें आपको A दिया गया and you need to figure out the R. बॉडी सेंटर्ड के लिए है √3. सो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे √2 है विद दिस स्टैकिंग सीक्वेंस. ये एक MCQ अलहदा आ सकता है. और
बॉडी सेंटर्ड के लिए √3 है 4r इक्वल्स टू। और सिंपल क्यूबिक के लिए भी अगर पूछा जाए तो इट्स सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड 2r। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, 3 बेसिक जो फेमस स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ से आप अगर ये दिया जाए तो आप वहाँ से लेटेस्ट कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द आवर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एफसीसी के लिए ए दिया गया एंड वी नीड टू फिगर आउट द आर। सो जस्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करें 4r इज इक्वल टू √2a। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे 4r इज इक्वल टू √3a। So you can solve it by yourself. What is the angle between this and this? So just considering them as vectors, 0i plus 1j plus 1k and 0i plus 0j plus 1k. तो अगर आप इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, so we all will only have this thing in the numerator. Denominator में जब हम इसके मैग्नीट्यूड लेंगे तो we will get √2 from here. तो इसकी वीडियो जाहिर बात है पहले ही मौजूद है, आपसे शेयर की गई है, सो वहाँ से आप दोबारा इसे रिकॉल कर सकते हैं। सो इट विल बी cos inverse √1/2, so it will be 45 degree. The stacking sequence of FCC, अभी हमने बुक पेज को देखा कि FCC के लिए जो स्टैकिंग सीक्वेंस है वो है ABC ABC ABC, जबकि SCP के लिए AB 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 है, कि मतलब SCP में 2 के बाद प्लेन आपका रिपीट होगा, जबकि FCC में 3 के बाद रिपीट होगा। Which of the following radiation has the same order of wavelength as that of atomic dimension? So we know it is X-rays, इसलिए हम X-ray diffraction पढ़ते हैं क्योंकि atomic dimensions और X-ray की wavelength comparable है। Bragg's law is 2d sin theta is equal to n lambda. As I can't write lambda here, so I have put L here for the lambda. Most widely used XRD method is powder method. Powder method में हम मटेरियल को पाउडर की शक्ल में लेके उस पर XRD करते हैं। सो रेसिप्रोकल लेटर सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक ही होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के ट्रांसलेशन वेक्टर रेसिप्रोकल में बीसीसी के बन जाते हैं और बीसीसी के एफसीसी के। सो इट वर्क्स लाइक दैट। द डिमेंशन ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर द रेसिप्रोकल इज 1/L। इसी वजह से इसे रेसिप्रोकल लेटर्स कहा जाता है क्योंकि इसकी डिमेंशन रिवर्स है, रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ है। सो दिस इज द सोल रीजन फॉर रेसिप्रोकल टर्म एज वेल। Wegener C cell is direct lattice is equivalent to brilliant zone in the reciprocal lattice। तो brilliant zone हम जो पढ़ते हैं वो reciprocal lattice में, वो basically Wegener seed cell ही होता है direct lattice में। Brilliant bone and signal weed cell is basically new language one can think of. The most stable structure is for which, हमारे पास जो most stable structure कौन सा होगा जिसमें maximum amount of energy release होगी, we will take it as a most stable structure। इसको मेटलिंग कांस्टेंट से भी हम रिलेट करेंगे अभी। ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आयनिक बॉन्ड। फ्री नेचर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय मेटालिक बॉन्ड एंड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। A crystal structure with higher value Madeline constant indicates a stable structure। Madeline constant एक difficult topic है to understand, लेकिन जो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू है, बेसिक एमसीक्यूज में आ सकता है, वो इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन बनते हैं कि ये शो क्या करता है, तो स्टेबिलिटी को शो करता है। ज्यादा मेडलिंग कांस्टेंट का मतलब है कि स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। वंडरवाल इंटरेक्शन जो है शॉर्ट रेंज है वी नो, और ये आर के साथ इन्वर्सली वेरी करती है, डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी वंडरवाल ज्यादा होगी। The nature of interaction give rise to van der Waals force in a molecule crystal is dipolar। हमें ये पता है कि ये ज्यादातर नोबल गैसेज में होती है ना, तो नोबल गैसेज में उस तरह इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या ट्रांसफर नहीं हो सकता, सो दे अरेंज देम इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल्स for the van der Waals interaction। The interaction of noble gases, as I said previously, is van der Waals। Repulsive interaction happens due to which principle? That is Pauli exclusion principle। Okay, so that's the discussion from solid state physics, important questions from chapter 1 to 3, and there a very strong probability and a possibility कि आपको जो क्वेश्चन इधर से आएंगे सॉलिड से, होपफुली द मोर पूरी सॉलिड से, वो इन्हीं में से कोई एक आधा मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। वी विल गो टू द डेप्थ इन कमिंग वीक्स, लेकिन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल सॉलिड स्टेट फिजिक्स।
ओके, अल्लाह हाफिज।